once again. Good morning, students. So till now we have completed 2 chapters, the last lesson and lost spring. I hope you all are clear with both the chapters, and for those who are still unable to understand the chapters, I would just suggest that please go through the lectures once again, because I've given my best and I've tried to make you all understand in the simplest way possible. Alright, so today we'll begin with our 3rd chapter, and I hope that you all are doing all your assignments, because that is very important. Please students, do not take this lockdown or this situation very lightly, because you have got plenty of time जिसमें आप घर में बैठ के आराम से अपना इंग्लिश सुधार सकते हैं. Once I'll be done with the chapters, हम आप लोग को ये भी बताएंगे कि कैसे आपको थोड़ा थोड़ा इंग्लिश का करना है और लिखना कैसे एंड ऑल दैट. Okay, so once we'll be done with our 3rd chapter, then I'll proceed to note making, और फिर हम आप लोगों को बताएंगे लिखते कैसे and all those things. All right, so let us begin with our 3rd chapter. So all those who do not have the book, it's here on the screen. Okay, so just understand, and just there's nothing to understand actually, because when you see this टाइटल विच इज डीप वाटर, इसमें कुछ समझने की है कोई बात ही नहीं है. क्यों? क्योंकि डीप वाटर इन इटसेल्फ इज सो सिंपल दैट एक 4th स्टैंडर्ड का बच्चा बता देगा आपको. डीप मीन्स गहरा, वाटर मीन्स पानी, सिंपल गहरा पानी. नाउ एज आई हैव टोल्ड यू, अब आप सोचेंगे कि मैम 2nd चैप्टर में भी आप लॉस्ट स्प्रिंग का ऐसे ही कुछ बताई थी, पर लॉस्ट स्प्रिंग में तो कुछ और ही निकला, स्प्रिंग का तो कोई बात ही नहीं हो रहा था. ओके फाइन, आई अंडरस्टैंड. हम आपको बोले हैं कि बहुत सारा चैप्टर्स का टाइटल मेटाफोरिकली अप्लाई हो भी सकता है और नॉर्मल लिटरल मीनिंग वाला भी अप्लाई हो सकता है. लिटरल मीनिंग एज इन जो डिक्शनरी मीनिंग है. यहाँ पर डीप वाटर मीन्स गहरा पानी, तो इतना तो हम लोग समझ रहे हैं कि कुछ पानी से रिलेटेड थिंग्स विल बी देयर एंड उसी के बारे में कुछ बात हो रहा है. ओके, लेट अस रीड अबाउट द ऑथर फर्स्ट एंड देन वील प्रोसीड विद द चैप्टर. William Douglas, okay, Douglas. William Douglas was born in Maine, Minnesota. Okay, Minnesota. It's actually Minnesota. It's a place in America, I guess. Minnesota. All right. After graduating with Bachelor's of Arts in English and Economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. Douglas was a leading advocate of individual rights. He retired in 1975 with a term lasting 36 years and remains the long-serving justice in the history of the court. The following excerpt means part, as I've told you. The following excerpt is taken from Of Men and Mountains by William O. Douglas. It reveals, now underline, okay, generally the last part of about the author, you get to know what the story is about. It reveals how, as a young boy, William Douglas nearly drowned in a swimming pool. In this essay, he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcame it. Now, notice how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear. Okay, so what the story is about, आप लोग समझ सकते हैं. यहाँ पर ड्राउनिंग का बात हो रहा है. ड्राउनिंग मीन्स डूबना. ड्राउन मतलब DROW and डूबना. So he had an incident. He had an experience in the swimming pool जहां ये पानी में डूब रहा था. विलियम डगलस जो ऑथर है, एंड किस तरह वो उस फियर ऑफ वाटर को फेस किया, उस एक्सपीरियंस को किया, एंड आफ्टर दैट हाउ ही ओवरकेम हिज फियर, ये इस स्टोरी में है. ऑलराइट, सो if when I'll give you the summary of the story, I have divided into 3 parts, I guess. First, I have spoken about the experience, the childhood of William Douglas. ठीक है, childhood में William Douglas के साथ क्या होता है and all that. And then I have discussed about
द इंटायर प्रोसेस, जो वो ड्राउनिंग प्रोसेस था, ठीक है, वो हाउ ही ड्राउन द इंटायर इंसिडेंट विच हैपेंड इन एट द स्विमिंग पूल, एंड देन आफ्टर दैट आई हैव discussed in the summary how he overcame his fear of water. All right, so in these 3 parts I have written the summary. As soon as I finish the chapter, I'll give you the summary so that you'll be able to understand it. All right, okay, so just help me out. Please, students, suggest me one thing in the comment section, that whether I should give the summary at the beginning of the first chapter lecture or at the end of that chapter's lecture. All right, I'll just wait for the suggestion. Whatever you feel, the students, you can give in the suggestion in the comment section. Just suggest me whether the summary should be given at the beginning of the chapter's lecture or at the end of the chapter's lecture, and as I get the suggestion, I'll react accordingly. All right, okay. So as we have understood, it is about, the story is about an incident जहाँ पर विलियम डगलस के बचपन का, चाइल्डहुड डेज का बात था, इसके टीनेज का बात था, जहाँ उसको एक वाटर के साथ, एक पानी के साथ एक हादसा हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ था, ड्यू टू विच वो फियर उसके अंदर आ चुका था, एंड वो फियर, वो कैसा एक्सपीरियंस होता है इंटायर स्विमिंग पूल में, वो इसमें डिस्कस्ड है. ऑलराइट, एंड देन हाउ ही ओवरकेम हिज एक्सपीरियंस, वो भी डिस्कस्ड है. ठीक है, ओके. Now let us begin with the chapter. Fine. It happened. Okay, so text is here on the screen. It had happened when I was 10 or 11 years old. Underline that. I had decided to learn to swim. So this, just let us read first. क्या ये वही स्विमिंग पूल वाला इंसिडेंट है, या इसके चाइल्डहुड में एक और इंसिडेंट हुआ था, वो उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहा ऑथर. नाउ अंडरस्टैंड, यहाँ पर आई और ऑथर, नरेटर और ऑथर सेम है. क्यों? क्योंकि देखो स्टोरी में क्या लिखा हुआ है, ऑटोबायोग्राफिकल. मतलब ऑटोबायोग्राफिकल, बायोग्राफी मतलब अपने, बायोग्राफी लाइफ के बारे में, ऑटोबायोग्राफिकल अपने लाइफ के बारे में. तो विलियम डगलस इज द ऑथर एंड ही हिमसेल्फ इज नरेटिंग अ स्टोरी ऑफ हिज ओन लाइफ. अपने लाइफ का एक स्टोरी वो हम रीडर्स को नरेट कर रहे हैं. तो यहाँ पर जो आई है, ये नरेटर, ही ऑथर है. विलियम डगलस इज द नरेटर एंड ही इज टेलिंग अबाउट हिज ओन एक्सपीरियंसेस. ओके, यहाँ तक समझ में आया? ओके. इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. There was a pool at YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. Okay, so what is the full form of YMCA? It's there on the screen. You can just see the full form of YMCA pool. So sorry for the mispronunciation. The YAKIMA is Yakima. Okay, it's not Yakima, because I was thinking it's sounding a bit weird because it's in America, and American pronunciation can never be Yakima. It's Yakima. Okay, it's Yakima. All right. So the Yakima River was treacherous. क्या लिखा है यहाँ पर? When I had this, it happened when I was, it had happened. It what? एक इंसिडेंट हुआ इसके साथ पानी को लेके. जरूर वो फियर ऑफ वाटर जो इसके अंदर आया था, एंड वो क्या इंसिडेंट था एंड कब हुआ था? When he was 10 or 11 years of age. I had decided to learn to swim. He had underlined these lines, when he was 10 or 11 years of age and he had decided to learn to swim. वो सोचा कि चलो सीखते हैं कैसे स्विम करते हैं. एंड एक पूल था, एक YMCA, एक इंस्टीट्यूशन, एक ऑर्गेनाइजेशन था वहां पर, एक एसोसिएशन का एक पूल था वहां पर. And it was there in Yakima, which was a river there, and which was a place also, and it offered that same opportunity, as in तुमको मन कर रहा है कुछ सीखने का और तुम्हारे पास वहीं पर एक क्लब है जो तुमको वही कुछ सिखा रहा है. So यहाँ पर this association was teaching swimming at that moment. The Yakima River was treacherous. Treacherous, dangerous. Treachery का मतलब क्या होता है? TREACHERY का मतलब होता है धोखा देना, वार करना. फॉर एग्जाम्पल, ए राजा बहुत ट्रेचरस था, मतलब जानलेवा एज वेल एज धोखा देने वाला था. क्यों? क्योंकि वो उससे दोस्ती करता है दूसरे राजा से, लेकिन पता चलता है पीठ पे वार कर दे रहा है. तो ट्रेचरी किया, एज इन ट्रेचरी, धोखा दे के बहुत डेंजरस होना. तो यहाँ पर कैसे पानी धोखा दे सकता है? तुमको लगेगा कि ये डीप वाटर नहीं है,
बट एट द सेम मोमेंट वो डीप वाटर होगा एंड तुम पता चला तुम डूब रहे हो, तो वो तुमको धोखा दिया एज वेल एज वो उसी मोमेंट डेंजरस भी है. सो याकिमा रिवर वॉज डेंजरस. Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. So उसकी मम्मी क्या करती थी, उसको कंटिन्यूसली वार्न करती थी कि सुनो ऐसे ध्यान रखना, यहाँ बहुत सारा इंसिडेंट हो चुका है. एंड जितना भी ड्राउनिंग इंसिडेंट्स था वो बार बार रिपीट करके ऑथर के जहन में फ्रेश रखती थी. ऑलराइट, बट द YMCA पूल वॉज सेफ. सो ऑथर वॉज सेइंग बट YMCA पूल जो था वो मस्त सेफ था, उसको कोई वहां कोई दिक्कत नहीं था, वहां हम जाके आराम से सीख सकते थे स्विम करना. इट वॉज ओनली 2 or 3 feet deep at the shallow end, and so please underline these lines. It was only 2 to 3 feet deep at the shallow end. Shallow जहां पर कम गहरा है, जहां हल्का है, जहां कम गहरा है वहां पर 2 to 3 feet deep है. While it was 9 feet at the other, the drop was gradual, slow, step by step, gradually. For example, the mountain or the carbon transforms into diamond gradually as in धीरे धीरे, step by step वो डायमंड बन जाता है कार्बन. You will learn this gradually. तुम धीरे धीरे step by step समझ जाओ कैसे क्या करते हैं. यहाँ पर ऑथर बोल रहा है कि जो YMCA पूल था वो एक तरफ 2 to 3 feet डीप था, ऑन द अदर हैंड इट वॉज 9 feet डीप. ठीक है, ऑन द अदर हैंड इट वॉज 9 feet डीप एंड द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल. मतलब कोई अगर गिरता है उस पानी के अंदर तो धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि अगर हम कोई चीज नीचे गिराएंगे तो वो स्टीप एकदम एक बार में नीचे जाएगा. इट विल गो ड्रॉप, इट विल गो स्टेप बाय स्टेप, एज इन इट विल गो वेरी स्लोली. I got a pair of water wings and went to the pool. I hated to walk. So this person is saying he was 10 or 11 years of age, the author, and ये यहाँ पर हम लोग को एक इंसिडेंट के बारे में बता रहा है जो याकिमा रिवर के पास जो एसोसिएशन YMCA पूल था वहां पर हुआ था. So you need to remember YMCA पूल because ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, सब्जेक्टिव आएगा. इसमें भी 2 marks का क्वेश्चन आता है. So you should be aware, describe YMCA पूल लिखा होगा. तो वहां पर 2 to 3 feet deep at one end, 9 feet deep at the other end, but the drop was gradual. तो ये अपना pair of wings as in ये अपना स्विमिंग सूट उठाता है and he was naked, not wearing any clothes and showing my skinny legs as in obviously 10-11 years में कोई body builder होता नहीं है, they're all skinny. But I subdued my pride and did it. So इसको बहुत शर्म आ रहा था because he was not wearing any clothes. So no matter you're small, you're younger or you're older, when you're without any clothes and you're even a child, you'll feel very embarrassed. So he is also feeling very kind of embarrassed. उसको शर्म आ रही है that वो अपना skinny legs दिखा रहा है वहां पर. But then he subdued his pride. Subdue, दबाना. Okay, suppress करना, हराना. सबड्यू मतलब दबाना, हराना. वो अपना प्राइड, अपना जो शर्म था या उसको जो अजीब लग रहा था उस चीज को वो दबाता है, वो उसको हराता है एंड देन वो स्विम करने के लिए चले जाता है. ऑलराइट, टिल हियर आई गेस यू हैव अंडरस्टूड. ओके. फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट. तो क्या अब ये हम लोग को एक पास्ट का इंसिडेंट के बारे में बता रहा है ऑथर जो है, ये बोल रहा है. लेकिन शुरू से हमको एक एवर्जन था पानी को लेके. एवर्जन, प्लीज अंडरलाइन एंड राइट. हेट्रेड, डिसलाइक, एक तरह का रिपेल करना. जो साइंस स्टूडेंट्स है वो समझ रहे होंगे, अगर हम पॉजिटिव को पास लाते हैं तो वो रिपेल करता है, एज इन वो दूर भागता है. तो एक तरह का डिसलाइक, एक तरह का डिस्टेंस, दूरी उसको फील हो रहा था, एक तरह का उसको बिल्कुल कनेक्ट नहीं फील करता था. एवर्जन, डिसलाइक, हेट्रेड उसको पानी को लेके था. ये जो सीड है, जो डर बोलो या हेट्रेड बोलो या एवर्जन बोलो, पानी को लेके जो आया है, इसके अंदर कहां से आया है? अभी ये 10-11 साल का है एंड इज गोइंग टू द YMCA पूल टू स्विम एंड उसको ये इंसिडेंट याद आता है. कौन सा इंसिडेंट? जस्ट लेट अस डिस्कस. दिस started when I was 3 or 4 years old. So author is saying जब हम 3 या 4 साल की उम्र के थे, my father took me to a beach in California. मेरे पापा हमको कैलिफोर्निया बीच में लेके गए. He and I was standing in the surf as in that area where near the water in the beach.
I hung on to him. Hung on to him मतलब hung मतलब hang का past tense, as in he was not hanging like a hanger, but kind of he was just holding on. He was just holding his father, and छोटा बच्चा था 3-4 साल का, तो वो लटका हुआ था अपने पापा के पैर के पास. Yet the waves knocked me down. Knocked, knock करना as in खटखटाना. So knock करना मतलब कि बिल्कुल गिरा देना. The waves came and kind of उसको मुंह पे knock कर दिया, as in पूरा गिरा देता है. Knocked me down and swept me over. Swept, sweep का past tense, sweep मतलब बहा के ले जाना. तो swept उसको बिल्कुल ऐसा लगा कि बहा के ले जा रहा है. But then he was not actually happening. It was not actually happening like that. But ऐसा लगा पानी का पूरा the thing came onto him and it was taking him along with itself. And I was buried in water. B-U-R-Y, bury नहीं बोलते हैं, बुरी भी नहीं बोलते हैं. B-U-R-Y को क्या बोलते हैं? bury. I know you है वहां पर, तो bury बोलना होता या बुरी होता, but then we pronounce it as bury. bury मतलब दफनाना. B-U-R-Y, bury करना, दफनाना. So यहाँ पर ये बोल रहा है कि हम 3 या 4 साल के थे, अपने पापा के साथ कैलिफोर्निया बीच गए थे. उसी वक्त क्या होता है कि हमें पापा को पकड़े हुए थे. सडनली अ वेव केम एंड इट नॉक्ड मी, एंड ऐसा लगा हम पानी में दफन हो गए, पानी में बिल्कुल धस गए. ऑलराइट, माई ब्रेथ वॉज गॉन. ऑब्वियसली व्हेन आई टेक अ बॉटल ऑफ वाटर और आई टेक अ कप ऑफ वाटर एंड आई जस्ट थ्रो इट ऑन योर फेस, तो कैसे लगेगा तुमको? सडनली आएगा तो नॉस्ट्रिल्स में पानी जाएगा, तुमको सांस नहीं आएगा. यू वोंट बी एबल टू ब्रीथ. Similarly, he's saying my breath was gone. I was frightened. Father laughed, but there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. Please underline. पहला तो underline करो. I had an aversion to the water when I was in it. उसको वो डर था. Second underline करो कि जब उसको वो पानी आके मुंह पे मारता है, his breath had gone. Okay, and he was frightened. That was the first time जब पानी को लेके उसके अंदर वो डर आता है. उसके पापा ऑब्वियसली हंसेंगे क्योंकि एक छोटे बच्चे के मुंह पे तुम फूकते हो या मुंह पे तुम पानी हल्का सा फेंकोगे, जो बहुत खराब बात है. बट देन तुमको हंसी आएगा when he will react in a weird way. But similarly उसके पापा यहाँ पर हंसते हैं. But what is the author saying? There was terror in my heart. वो डर जकड़ गया था मेरे हार्ट में, और हमको समझ में आ गया था कि ये पानी का वेव्स का कितना ज्यादा ओवरपावरिंग कितना दूसरे को भी ताकत अपना ताकत दिखाना, दूसरे पे भी हासिल अपना पावर बिल्कुल बोल सकते हो कब्जा करने का, ये जो ताकत एक पानी के अंदर होता है, पानी के अंदर ही दैट डे एक्सपीरियंस्ड. सो वी अंडरस्टूड दैट द ऑथर हिमसेल्फ इज द नरेटर, विलियम डगलस, एंड वो अपना एक इंसिडेंट बता रहा है जो उसको पानी के साथ हुआ था डीप वाटर में, एंड वो कैसे उस चीज डर आता है उसके अंदर पानी को लेके, एंड कैसे वो ओवरकम करता है. पर यहाँ पर कहीं भी हम लोग को डीप वाटर अभी तक वैसा नहीं फील हुआ. इट जस्ट फेल्ट दैट एक पानी का वेव आया, द वेव केम एंड इट जस्ट नॉक्ड हिम डाउन. एक्चुअली में इंसिडेंट कहाँ होगा? अभी जब YMCA पूल वो एंटर कर रहा है. इंसिडेंट स्विमिंग पूल में होगा. ये स्विमिंग पूल जाते वक्त ये इंसिडेंट को याद करता है. कौन सा इंसिडेंट? जो 3-4 साल की उम्र में इसके साथ कैलिफोर्निया बीच में हुआ था. एंड दैट वाज द डे एंड दैट वाज द रीजन व्हाई ही हैड अ डिसलाइक, व्हाई ही हैड अ फियर ऑफ वाटर. ऑलराइट, सो यू अंडरस्टूड that William Douglas is narrating an incident about his life where he felt that fear of water and how he overcame it. तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े? I think you are clear with it that वो एक YMCA पूल गया है जहां उसको स्विमिंग सीखना है, पर वो जैसे जा रहा है उस स्विमिंग पूल की तरफ, उसको याद आ रहा है अपना खौफनाक इंसिडेंट जो उसके साथ हुआ था जब वो 3-4 साल की उम्र का था. एंड नाउ इन द नेक्स्ट क्लास आई टेल यू कि स्विमिंग पूल में होता क्या है. So those who have the books, please read the chapter, and you can also search from the nets. You can download the NCERT app, and then from there you can download the book, and you can read the chapter. All right. So in the next class we'll meet again. Please study well and keep listening to the lectures. All right. Thank you.